हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज वीडियो। आज के कैंडिड टॉक शो में हमारे साथ है पार्थ लटूरिया। पार्थ इज प्रेजेंटली इन हिज थर्ड ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड ही इज डूइंग हिज बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मैं पहली बार पार्थ से 2018 में केमिस्ट्री ओलंपियाड के कैंप के दौरान मिला था। पार्थ ने 2018 में ही जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 3 सिक्योर किया और जेई एडवांस में 29। ना सिर्फ पार्थ ने जेई मेंस और एडवांस में अच्छा परफॉर्म किया बल्कि पार्थ एक एनटीएससी स्कॉलर भी हैं। उन्होंने केवीपीवाई भी क्रैक किया हुआ है, आरएमओ और सभी ओलंपियाड्स में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आज के इस वीडियो में सुनते हैं हम पार्थ से उनका ओपिनियन जेई प्रिपरेशन पे और कैसे उन्होंने अपने प्रिपरेशन के दौरान चैलेंजेस एंड हर्डल्स को ओवरकम किया और इतना अच्छा जेई में परफॉर्म किया। So if you want to know the secret of Parth, then check out the full video. Hi Parth, nice to see you. How are you doing these days? Hi Divyajit, nice to talk to you. I'm doing fine. The semester has started, obviously in an online mode, and it's Yeah. rather monotonous experience of the online semester from a long time. So that's how it's going. Apart from that, I am getting much time to spend with my families, my earlier childhood friends, and all. And maybe everything is going virtual. So uh, one of the best companions of my life these days is my laptop, of course. So that's how it's going right now. Yeah, quite right. Apart from these academics, what are you up to these days? So nothing much as far as my co-curricular activities are concerned. I play badminton. I play chess with my mom, and apart from this, I also am working on a startup. Like the name, it's a social entrepreneurship startup. The name is Female, and the main target of the startup is basically to target and help those females that are affected by a very common, yet underrated disease named PCOS. So it is a kind of disease that affects more or less 1 out of every 5 women. But then, due to maybe improper diet or improper exercise, this disease gets aggravated, and like the teenage girls that are the main target and victims of this disease do not understand what is right, what is wrong, and so that kind of leads to a serious consequence of this problem. So we as a startup are aiming to basically make people more aware about this disease and also try to provide a good and healthy food diet to such females that are affected by this disease, so that we target the right audience and we also try to dilute the effects of this disease. So that's one of the main things I'm working on right now. It's quite nice. I must say it's a noble cause and may God bless you and you all succeed in your noble mission. And just an additional, I also working on a similar kind of thing, but it's not a startup kind of thing. We are like making a biomedical device for anemia, like iron deficiency anemia, IDA. It's a very common problem in teenagers, especially female teenagers. So, and tests are quite expensive. So we are right now working on finding a solution to make this device a micro medical device, so that like जैसे ग्लूकोज अपन मेजर करते हैं ना घर पे ग्लूकोज टिप से, Yeah. इसके लिए अपने लैब्स नहीं जानी होती, हम वैसा ही एक डिवाइस आयरन डिफिशियंसी अनीमिया के लिए भी बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं। इट्स अ कोर्स प्रोजेक्ट फॉर मी, नॉट अ स्टार्टअप, but that's nice. We should also I always encourage my viewers also to work on these social challenges and become a social entrepreneur. It's a great thing. Yeah, all the best for your project also. I feel that is also a good initiative for the society. Thank you. So Parth, my first question will be, आपने अपनी जेई प्रिपरेशन एक्चुअली में कब स्टार्ट की थी? क्योंकि ऐसा मानना है काफी बच्चों का कि अर्ली स्टार्ट से काफी फायदा होता है। कॉमन मिसकंसेप्शन है जो बच्चों में है कि जो भी टॉप रैंकर्स होते हैं, तो आपके जैसे टॉप रैंकर्स जो सिंगल डिजिट रैंक लाते हैं, वो अपनी जेई प्रिपरेशन क्लास 6, 7, 8 से ही स्टार्ट कर देते हैं। ये कितना सच है पार्थ? द नेशन ये वांट्स टू नो। या तो ये बहुत ही कम सच है। लाइक ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस नहीं है। लाइक देयर आर सम केसेस जिसमें बच्चे 6 या 7 से पढ़ाई शुरू कर देते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे सिंगल डिजिट या टॉप 50 या टॉप 100 रैंक आती है बच्चों की, उसमें बहुत बार मेन फैक्टर होता है सिंसियरिटी, डेडिकेशन और हार्डवर्क का। तो अगर मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने
असली जो जेई की प्रिपरेशन थी, जो सीरियस जेई प्रिपरेशन थी, वो 11 से ही स्टार्ट की थी। जस्ट दैट 10th में मैंने कुछ मैथ्स के, फिजिक्स के चैप्टर्स का जो बेसिक फ्लेवर होता है या जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेवलप किया था। जैसे अगर आपको पता हो तो मैथ्स में जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स इन द कैलकुलस, और उसके अलावा फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो बेसिक फाउंडेशनल चैप्टर्स होते हैं मैथ्स के, और फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स और डायमेंशन यूनिट, जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं, इनकी मैंने थोड़ी स्टडी की थी मेरे 10th के ईयर में। बट वही है कि इट वाज नॉट अप टू द जेई मार्क, बट जस्ट दैट मेरे को एक बार, मतलब मुझे एक बार पर्सनली देखना था कि जेई के लिए क्या क्या टॉपिक्स है सिलेबस में, एंड मेरे को एक बार देखना था कि क्या क्या कंटेंट है जेई के एग्जाम का। तो बेस्ड ऑन दैट मोटिवेशन ओनली मैंने ये बेसिक बेसिक टॉपिक देखे थे। बट जो फुल फ्लेज जेई की प्रिपरेशन थी वो मैंने 11th में शुरू करी थी। और मेरा ऐसा मानना है कि जल्दी शुरू करने से अच्छी रैंक नहीं आती है। जस्ट दैट जब भी आप जो भी कर रहे हो, आप उसके अंदर अपनी 100% एनर्जी डालिए। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, आप इंश्योर करिए कि आप उसको अच्छे से समझ रहे हो। आप इंश्योर करिए कि आपकी सिली मिस्टेक्स ना हो रही हो, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो रही हो, एंड आप जो भी ग्राफ कर रहे हो आप वो एक अच्छे बेसिस पे और परमानेंट बेसिस पे ग्राफ कर रहे हो। क्योंकि जो 11th और 12th है, आइडियली दे आर इनफ फॉर यू टू गेट एनी रैंक इन जेई, इवन फ्रॉम 1 to 10,000। तो 2 साल में इट्स पॉसिबल फॉर यू टू गेट अ रैंक ऑफ AR1, एंड इट्स पॉसिबल फॉर एनीवन। जस्ट दैट आपको आपकी मेहनत, डेडिकेशन और लगन के साथ पूरा 2 साल अच्छे से काम करना है। तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप सिंसियर रहे, डेडिकेटेड रहे, रेगुलरली अपना होमवर्क कंप्लीट करें, रेगुलरली स्टडी कंप्लीट करें, एंड इससे आपका एक अच्छा रैंक जेई में इंश्योर हो जाएगा। बिल्कुल सही, काफी एग्री करता हूँ मैं। ये काफी हद तक वो रैबिट और कछुए की कहानी से मिलता जुलता है। रैबिट ने एज तो ले ली थी, पर जरूरी होता है जेई प्रिपरेशन में इंड्योरेंस, ना कि स्प्रिंटिंग एबिलिटी। आपके पास प्रॉपर इंड्योरेंस होना चाहिए कि आप 2 साल तक अपनी एज को मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा, जो कि काफी बार पूछा जाता है और ये काफी बच्चों को महसूस भी होता है कि जब वो क्लास 10th तक होते हैं तो चीजें उनको 11th 12th में भी वही पढ़नी होती है जो 9th 10th में उन्होंने पढ़ रखा है। पर होता क्या है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही बच्चे 10th से 11th में आते हैं, उस ट्रांजिशन में उनको काफी प्रॉब्लम होता है। तो वैसे में हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा टिप्स दीजिए कि किस तरह से वो इस डिफिकल्टी को ओवरकम कर सके और वो ट्रांजिशन स्मूथ कर सके। तो अगर मैं इस डिफिकल्टी की बात करूँ तो ये डिफिकल्टी, एक तो मेन रीजन इस डिफिकल्टी का ये है कि आपके 10th के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है ना। तो 11th में जब भी कोई बच्चा एंटर करता है, और अगर आप किसी कोचिंग में ज्वाइन कर रहे हो या आप कोई भी ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो, ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो ये अज्यूम्ड होता है कि आपके जो 10th के बेसिक एनसीईआरटी के कंसेप्ट हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये कंप्लीटली क्लियर है। लाइक आपने उसको रट्टा नहीं मारा है, आपको कंसेप्टली पता है कि वो कंसेप्ट क्या है, उसका यूज कहाँ होता है और उसको यूज कैसे करते हैं। तो अगर आपको 10th के बेसिक बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छे से क्लियर है, तो आई डोंट थिंक ये ट्रांजिशन उतना ज्यादा हार्मफुल या उतना ज्यादा ड्रास्टिक होगा आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इवन अगर मतलब अगर आपको बेसिक 10 के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने 10 के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करें, जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, जो एनसीईआरटी में सिखाए गए हुए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके 10th के कंसेप्ट क्लियर है, इसके अलावा भी आपके लिए ये जरूरी है कि आप जो 11th का मटेरियल है उसको लाइटली ना ले। लाइक जैसा दिव्यजीत आपने कहा कि टॉपिक्स तो सेम ही है, उनके जो हेडिंग्स होते हैं वो नाम तो सेम ही है, बट द डिफरेंस बिटवीन 9th 10th एंड 11th 12th इज कि 11th 12th में हर टॉपिक ज्यादा डेप्थ में सिखाया जाता है, ज्यादा टफनेस का सिखाया जाता है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आपको जो भी सिखाया जा रहा है आप उसको सीरियसली ले, जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है आप उसको रेगुलरली कंप्लीट करें। और सिंसियरिटी, हार्डवर्क, डेडिकेशन, ये जैसे मैंने पहले कहा था, ये काफी मैटर करता है इस पीरियड में। ठीक है ना। मतलब जो बच्चे को 10th के कंसेप्ट क्लियर है और जो हार्ड वर्क से और डेडिकेशन से अच्छे से काम कर रहा है, आई डोंट थिंक ये ट्रांजिशन उसके लिए हार्मफुल होगा। इनफैक्ट ये ट्रांजिशन उसको स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटी सिखाएगा और प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं ये सिखाएगा। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इवन इन योर फ्यूचर लाइफ, कि आपको प्रेशर कैसे हैंडल करना होता है। जैसे 11th और 12th के अंदर जो भी आपको टारगेट मिलते हैं, अगर आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस और ऑन अ वीकली बेसिस, तो दैट मीन्स कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ सीख रहे हो।
एंड आई फील कि ये जो भी ट्रांजिशन पीरियड है ये हर एक के फेज में आना, हर एक के लाइफ के फेज में आना चाहिए, बिकॉज इसके अलावा मतलब अगर आप ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो तो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट ऑफ योर लाइफ मिस कर रहे हो। ये ट्रांजिशन एक्सपीरियंस करने से आपको एटलीस्ट ये एहसास हो जाएगा कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू व्हेन यू एंटर योर प्रोफेशनल लाइफ, एंड आपको बेसिकली ये समझ जाएगा कि प्रेशर सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं और आपका टाइम कैसे मैनेज करते हैं। तो आई फील कि ये ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है, बट वही है कि ट्रांजिशन को अच्छे से डील करने के लिए आपको एक तो अपने 10 के कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए अच्छे से, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो 11th और 12th में सिखाया जा रहा है उसको सीरियसली लेके रेगुलर बेसिस पे अच्छे से मेहनत करना है। Okay, thank you Parth for such insightful message. Now my next question is that is also very common. काफी स्टूडेंट्स मुझसे भी पूछते हैं कि they have messed up their class 11th में उनका किसी भी कारणवश अच्छे से नहीं तैयारी हो पाई और अब उनको ऐसा लगता है कि 11th उनका वीक हो गया। तो वैसे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको क्या करना चाहिए क्लास 12 में, या उनकी अच्छी रैंक आ सकती है क्या? मतलब मेरे हिसाब से तो आ सकती है, आप अपना व्यू बताएं इस पे। ऐसे बच्चों के लिए मैं मतलब अच्छी रैंक तो आ ही सकती है बिल्कुल, बट जस्ट दैट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। सॉरी। तो वही है कि अगर आपने अपना 11 थोड़ा मेस्टअप कर लिया है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस पोजीशन में हो, आपकी कितनी पढ़ाई हो चुकी है और आपको क्लैरिटी नहीं है कि आगे कैसे पढ़ना है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप 12th को तो एटलीस्ट ऐसा ना करें, 12th में जो सिखाया जा रहा है उसके साथ ऐसा ना करें। 12th का जो कंटेंट सिखाया जा रहा है उसको चलने दे। जो भी आपके 12th के चैप्टर सिखाए जा रहे हैं, जो भी आपके चैप्टर चल रहे हैं टीचिंग में, रेगुलर टीचिंग में, उसको चलने दे। उसकी जगह पे 11th ना करे, मतलब 12th के कंटेंट को 11th के कंटेंट से रिप्लेस ना करे। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज आपको 11th भी कवर करना है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फाइट मारना पड़ेगा। आपको आपके रेगुलर रूटीन से, रेगुलर शेड्यूल से 1 या 2 घंटे एटलीस्ट डेली निकालने पड़ेंगे। एंड ये जो आप 1-2 घंटे निकालेंगे, यू कैन डेडिकेट दीज 1-2 आवर्स टू द स्टडी ऑफ क्लास 11। जो भी आपका बैकलॉग है, जो भी आपके मेन चैप्टर्स या मेन कंसेप्ट मिस हो गए हैं, आप इन 1-2 घंटों में उनको कवर कर सकते हैं। बट द मेन प्रिंसिपल इज आपको 12th के साथ साथ 11th को चलाना है, 12th के जगह पे 11th को नहीं चलाना, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपने 12th के रेगुलर टाइम में 11th पढ़ा तो आपका जो 12th का सिलेबस है वो बैकलॉग में चले जाएगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर्ली टाइम मैनेज करते आना चाहिए और आपको इस पे फोकस करना चाहिए कि आप 12th की पढ़ाई के साथ साथ 11th की पढ़ाई कर रहे हो। ये भी एक बात है कि 12th के लिए 11th प्री रिक्विजिट होता है, मतलब 11th के काफी सारे कंसेप्ट 12th में काम आते हैं। बट अगर आपने 11th मैस्टअप कर लिया है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के 11th कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करें एंड उसको यूज करके 12th के टॉपिक्स पे कमांड लाएं। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर ईयर ऑफ क्लास 12th, अगर आपको लग रहा है कि आपने अपना 11th मैस्टअप कर लिया है। थैंक यू पार्थ। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि देखो जेई की जो प्रिपरेशन होती है वो तो हमें भी पता है काफी हेक्टिक होती है, काफी पढ़ाई रहता है, पर दिन भर पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है अपने माइंड को और बॉडी को रिलैक्स करना भी। तो आप अपने फ्री टाइम में कैसे अपने आप को रिलैक्स करते थे, एंड आपका क्या ओपिनियन है अबाउट सोशल मीडिया या फिर ऐसे गेम्स के बारे में जो बच्चे खेलते हैं आजकल काफी ज्यादा? तो जैसा कि दिव्यजीत आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है, मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना चाहूंगा। पहला तो ये कि आप रिलैक्स खुद को कैसे करें। तो रिलैक्स करने के 1000 टेक्निक से, इवन अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया। जैसे सोशल मीडिया का क्रेज तो मे बी रिसेंट ईयर्स में डेवलप हुआ है, एंड इवन जैसे मैं कोटा में था तो वहाँ पे सोशल मीडिया का बहुत ही नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस है ओवर द 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। तो उस सिटी में या उस माहौल में आप रिलैक्स कैसे करें? तो जैसा कि अगर मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैंने काफी सारे सोर्सेज ढूंढे थे कोटा में रिलैक्स करने के। वन ऑफ देम इज म्यूजिक। आप अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो, आपका मन पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हो। द अदर थिंग इज योगा, एक्सरसाइज एंड मे बी सम काइंड ऑफ डांस, कई बॉडी मतलब फिजिकल एक्टिविटीज जो भी आपको अच्छी लगती हो, आप उससे अपना माइंड शांत कर सकते हो। इससे एक तो एक्सरसाइज भी होगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा, आप रिलैक्स रहोगे, एंड एक काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा आपको, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, एंड इट्स लाइक वो आपके माइंड को वापस एनर्जाइज कर देगा अगला स्टडी करने के लिए या आगे पढ़ाई करने के लिए। इसके अलावा जैसे मेरे कुछ दोस्त भी थे जो मेरे साथ 10th तक मेरे स्कूल में थे, एंड वो लोग मेरे साथ कोटा आए थे जेई की पढ़ाई करने। तो जैसे हमारा एक ग्रुप बना हुआ था तो हम लोग सभी कोई फुटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट ऐसे आउटडोर गेम्स खेलते थे।
तो अगर आपका कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें आपको लगता है कि लोग एंथुजियास्टिक है फुटबॉल या कोई भी ऐसे गेम्स खेलने के लिए, तो आप उनके साथ हमेशा खेल सकते हो। लाइक जो भी ऑन ग्राउंड गेम्स होते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, ये हमेशा एक्साइटिंग होते हैं। दे ऑलवेज हेल्प यू रिफ्रेश योर माइंड एंड दे ऑलवेज हेल्प यू कि आप मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपके आगे की पढ़ाई शुरू करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मतलब मैं मेरे दोस्त के साथ टीटी भी खेलता था, बैडमिंटन भी खेलता था। एंड बट जैसे दिव्यजीत ने जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का वो पूछा था कि सोशल मीडिया कितना जरूरी है, तो अगर मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ तो सोशल मीडिया बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, 11th और 12th में मैंने इंटरनेट बस मेरा रिजल्ट देखने के लिए यूज किया था। एंड उसके अलावा इंटरनेट का मैंने कभी भी यूज नहीं किया। फ्रैंकली स्पीकिंग, इवन इंटरनेट लाइक अभी तो ऑनलाइन सेमेस्टर है, सॉरी अभी तो ऑनलाइन स्टडीज चल रही है, तो एज ऑफ नाउ इंटरनेट जरूरी है। बट अगर आप ऑफलाइन मोड में 11th और 12th की कोचिंग कर रहे हो या 11th और 12th की पढ़ाई कर रहे हो, तो एज पर माय ओपिनियन, एज पर माय एक्सपीरियंस, इंटरनेट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इनफैक्ट इंटरनेट आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन भी बन सकता है, सोशल मीडिया आपके लिए डिस्ट्रैक्शन भी बन सकता है। एंड 11th और 12th बहुत ही क्रूशियल ईयर्स होते हैं आपके पूरे लाइफ के। आप 11th और 12th में क्या करते हो, कैसे करते हो और किस एफर्ट के साथ करते हो, दैट विल डिटरमाइन कि आपकी आगे की लाइफ कैसी है, आपके आगे का फ्यूचर कैसा है, आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, आपका क्या स्टेटस है सोसाइटी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप अपने 11th और 12th के हर एक सेकंड को बहुत ही इम्पोर्टेंस और सीरियसनेस के साथ बिताएं। मतलब कभी भी आप ऐसा ना करें कि यार मतलब मेरा बस टाइम वेस्ट ही हो रहा है एंड मैं उसको वेस्ट होने दूं। बिकॉज 11th और 12th का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती है। एंड एज पर माई ओपिनियन सोशल मीडिया या जो भी आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके जो ग्रुप्स होते हैं, दे more or less kind of kill your time, they attract your time from yourself, मतलब ये आपसे आपका टाइम छीन लेते हैं। तो इसको आपको कंट्रोल करना है, ठीक है ना। मतलब 11th और 12th में सोशल मीडिया को एज अ रिफ्रेशमेंट या एज रिलैक्सेशन बिल्कुल भी ना यूज करें। जहां तक जिस एक्सटेंड तक पॉसिबल है उस एक्सटेंड तक। अगर आपको रिलैक्स ही करना है तो जैसे मैंने आपको पहले अपने सोर्सेज बताए थे, उसमें से आप कोई सोर्स यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुकिंग पसंद है या आपकी जो भी हॉबी है, आप अपनी हॉबी परस्यू करके रिलैक्स हो सकते हैं। बट सोशल मीडिया को रिलैक्सेशन का ऑप्शन बिल्कुल भी ना बनाए, क्योंकि 11th और 12th में अगर आप ऑफलाइन मोड में ले रहे हो कोचिंग या एजुकेशन, तो सोशल मीडिया इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। इंटरनेट भी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एंड this is the main point that you should focus on in your 11th and 12th. So I think this is clear। and मतलब सोशल मीडिया से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है, जितना कंट्रोल रखा जाए उतना अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे काफी अग्री करता हूँ, क्योंकि जब मैं भी जेई प्रिपेयर कर रहा था तो मैं जिस कैंपस में था वहाँ पे फोन अलाउड नहीं था, स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं थे, और मैं खुद सोशल मीडिया का यूज तभी करता था जब मैं छुट्टियों में घर जाता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू ऐड वन कोट दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। यहाँ पे प्ले का मतलब ऑनलाइन गेम्स नहीं है, आपको फिजिकल स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, इससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और काफी रिलैक्स भी आपको करने को मिलता है। So apart from that, now I want to ask you the final question that काफी टाइम पे ऐसा होता है हमारे साथ प्रिपरेशन के दौरान, so 2 year टाइम, so 2 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। कई बार हम मतलब एक नेगेटिव फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहे होते हैं, हम एफर्ट्स तो करते हैं पर चीजें सही नहीं होती, हम पढ़ाई करते हैं पर टेस्ट में रिजल्ट नहीं आता। वैसे केस में काफी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर उनका ग्राफ ऐसे नीचे चलता जाता है और वो फिर कभी ओवरकम नहीं कर पाते हैं उस चीज को। तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है और आपने कभी ऐसा फेस किया तो उसको कैसे टैकल किया, तो कुछ शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन पूछा है आपने दिव्यजीत। तो ये क्वेश्चन का आंसर देना मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज लोगों को पता है कि सक्सेस को कैसे एंजॉय करते हैं, बट लोगों को ये नहीं पता कि फेलियर के साथ डील कैसे करते हैं। तो अगर आप ये सीख जाते हो कि फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं, फेलियर अगर अगर आप फेल हो रहे हो तो आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, देन आई थिंक आपने आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सीख लिया है। तो अगर मैं बात करूँ 11th और 12th की, तो 11th और 12th में ऐसे हजार ओकेजन आएंगे, ऐसे हजार पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि यार अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, मैं जिंदगी में और कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मैं बेकार हो चुका हूँ। ऐसे आपको हजार जगहों पे लगेगा, आपको हजार इवेंट्स पे लगेगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको
बिना ये सोचे, आपको बिना ये कुछ इसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस दिए हुए आपको बस अपना काम करना है। आपको कोई भी प्रेशर नहीं लेना, पेरेंटल प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, या फिर किसी टीचर का प्रेशर, या फिर किसी फ्रेंड का प्रेशर। प्रेशर इन अ नेगेटिव सेंस आपको काफी कमजोर कर देगा, आपको काफी इनएफिशिएंट कर देगा। प्रेशर ऑन द अदर हैंड अगर आप पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके कैपेसिटीज को एक्सटेंड करेगा, आपके लिमिट्स को पुश करेगा। बट वही है कि अगर आप प्रेशर प्रेशर को निगेटिवली एक्सेप्ट कर रहे हो, निगेटिवली गेन कर रहे हो, देन वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ऐसा अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे मार्क्स कम आए, मेरे सिली मिस्टेक्स होते थे, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे टीचर ने मुझे बहुत गंदी तरह से डांटा है। तो मुझे कभी कभी लगता था कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब अगर टीचर इतनी बुरी तरह से डांट रहे हैं इसका मतलब वो उन लोगों ने मुझसे उम्मीद छोड़ दी है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, जब टीचर्स या पेरेंट्स या आपके वेल विशर्स आपको डांटते हैं, आपको कोई बात पे टोकते हैं, द मेन थिंग दैट यू शुड थिंक ऑफ इज ये आपके लिए केयर करते हैं इसलिए आपको टोक रहे हैं। देयर इज नो अदर रीजन बिकॉज ऑफ विच दे विल बेसिकली इंटरप्ट यू, दे विल स्कोल्ड यू। ठीक है ना। तो एक बार अगर मैं आपको पर्सपेक्टिव बताऊं तो मेरे एक जेई एडवांस पेपर में बहुत ही कम मार्क्स आए थे। उसके बाद मुझे लगा था कि यार अब मेरा कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो पेपर था वो मेंस और एडवांस के जस्ट पहले हुआ था, एक महीने पहले। तो तब मुझे लगा था कि यार इस पॉइंट पे आके मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं यही एडवांस में, तो मेरा जो 2 साल का ड्रीम था वो पूरा शैटर होने वाला है। एंड मैं बहुत ही निगेटिविटी से भर चुका था। ठीक है, तो मतलब मुझे लगने लगा था कि यार अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, जेई एडवांस मेरी बिगड़ चुकी है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया था। और उसी पॉइंट पे मेरे दोस्त ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छे से समझाया, मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा गाइड किया है, और उस पॉइंट पे उन्होंने मुझे गाइड किया कि कहा कि ये एग्जाम ज्यादा मैटर नहीं करती, तुमने जो 2 साल पढ़ाई की है दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तुमने जो रेगुलरिटी से पढ़ाई की है, तुमने जो सिंसियरिटी से पढ़ाई की है, वो हमेशा मैटर करती है। तो इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट बात जिसके वजह से डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी आती है कि आप कंपेयर करते हो हर बार। आप बहुत बार अपने दोस्त के साथ कंपेयर करते हो कि यार उसके इतने मार्क्स हैं, मेरे इससे कम मार्क्स आए, या उसने ये ओलंपियाड क्रैक कर लिया, उसने ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर ली, मैंने अभी तक क्रैक नहीं करी। बट जस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आप अपने एब्सोल्यूट सेंस में सक्सीड करें। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। उस बंदे के लिमिट्स अलग होंगे, आपके लिमिट्स अलग होंगे, जो सामने पर्सन बैठा है उसके लिमिट्स अलग होंगे। ठीक है ना। तो अपने ओरिजिनल लिमिट्स को आइडेंटिफाई करना और उसको अचीव करना, दिस इज द साइन ऑफ अ स्टेबल एंड अ वेल बैलेंस्ड पर्सन। ठीक है। अगर आप अपने लिमिट्स को अच्छे से अचीव करते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको नाराज होने की या डिप्रेस होने की कोई जरूरत है, बिकॉज यू हैव अचीव व्हाट यू कैन, और उसके आगे यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अचीव, और आप अचीव नहीं कर पाओगे। आप अपने लिमिट्स को पुश कर सकते हो, बट आप अपने लिमिट्स के आगे अचीव नहीं कर सकते। तो मैं इसी पे फोकस करूंगा कि आप अपने लिमिट्स को 100% अचीव करें, आप कंपेयर ना करें, आप उतना स्कोर करें हर एग्जाम में जितना आपको करना चाहिए। ठीक है। मतलब हमेशा हर एग्जाम के बाद ये एक एनालिसिस जरूर रखें कि आप कितना स्कोर कर रहे हो और आप कितना स्कोर कर सकते हो। द डिफरेंस बिटवीन कितना स्कोर कर रहे हो एंड कितना स्कोर कर सकते हो इज व्हाट इट मैटर्स। अगर ये डिफरेंस 0 हो गया तो आप जितना कितना स्कोर कर रहे हो, जितना आपको करना चाहिए, जितना आप कर सकते हो, एंड दिस इज द रियल सक्सेस, दिस इज द रियल अचीवमेंट दैट यू शुड टारगेट फॉर। ना कि उस बंदे ने कितना स्कोर किया मुझे उतना स्कोर करना है, इस बंदे ने कितना स्कोर किया मुझे इतना स्कोर करना है। ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, एंड दिस आई फील इज वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रेस, प्रेशर और लैक ऑफ परफॉर्मेंस। तो मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप इस पे भी फोकस करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, फेलियर्स आर अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। दिस इज अ वेरी गुड एंड अ नाइस थॉट। तो आई फील कि आपको फेलियर को पॉजिटिवली लेना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कौन सी गलतियां ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, और बाकी कौन सी गलतियां ऐसी हुई है जो मतलब पहली बार हो रही है। ठीक है ना। आप अपने गलतियों, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करें और उससे पॉजिटिवली सीखें कि आपने क्या गलत किया था, क्यों गलत किया था, और ट्राई टू एंश्योर, आप ये एंश्योर करें कि वो गलती आप आगे ना करें, अगले एग्जाम में ना करें। ठीक है। जेई एडवांस तक आपको हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ चांसेस मिलेंगे, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्स होंगी, हर एग्जाम में कोई ना कोई गलती होगी। बट व्हाट मैटर एट द एंड इज आप जेई में कैसे परफॉर्म कर रहे हो। एंड जो 2 साल है वो इसी के लिए है कि आप अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग गलतियां करें, आप उन गलतियों से सीखे कि क्या गलती हुई है, कैसे गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, एंड दैट गलती, वो गलती आप जेई एडवांस में या जेई मेंस में ना करें।
दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। आपके जो प्रीवियस पेपर्स होंगे 11th और 12th के, उसके मार्क्स आपको आगे कोई भी नहीं पूछेगा। जो भी आपको पूछेंगे वो है आपके जेई एडवांस और जेई मेंस के मार्क्स। तो इसलिए ये इंश्योर करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप 2 साल में जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां आप एक बार उन गलतियों से सीखे कि आप वो गलतियां क्यों कर रहे हैं, और वो गलती जेई मेंस में ना करें और जेई एडवांस में भी ना करें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपको स्ट्रेस देना चाहिए। तो आई थिंक दिस वाज आंसर टू दिस क्वेश्चन कि आपको ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना है फेलियर्स पे, एंड यू शुड बी वेल बैलेंस्ड इन सच केसेस। थैंक यू पार्थ, काफी इंसाइटफुल। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये था कि दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछूंगा एक बार अपने हाथ की तरफ देखे और मुझे बताया क्या हमारी पांचों उंगलियां सेम साइज की हैं। जब हमारी पांचों उंगलियां सेम साइज की नहीं है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस किसी दूसरे बंदे के परफॉर्मेंस से मैच करेगा। तो हमें दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें अपने गोल सेट करने चाहिए और उनको अचीव करना चाहिए, समझ रहे हो? तब आप बहुत अच्छा करोगे। जैसा कि पार्थ ने जो भी बताया वो काफी 100% एकदम सही है और मैं भी, मेरे विचार भी एकदम उससे मिलते जुलते हैं। तो थैंक यू पार्थ, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप हमारे सभी व्यूअर्स को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक अच्छा थॉट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। ठीक है ना? ये 2 साल आपके जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 2 साल होंगे। आपको तब तक नहीं रुकना जब तक आप या तो मर जाते हो या तो कर जाते हो। ठीक है ना? तो बस करते रहिए और करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पार्थ, थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन, बाय। बाय।